Hi guys, fantastic. It's amazing to see all of you all today and it's been great. So I just close this phone right now so that we don't get any disturbance. Okay. Okay guys, fantastic. If you can see me properly and hear my voice, just type 1 so I know that you can hear me. Just type 1. Oh yeah, fantastic. Okay, yeah, fantastic, guys. So today we are going to have a very special speaker. Now, what makes this guy, which I find very special, I think he might have already come on, but let me see if I can get him and make him a. Yes, guys. Sorry for the delay. We have this very good speaker, very fantastic guy. You know what I liked about him is his age. He's just 18 years old. Now imagine 18 years old has a vision. उनका जो सपना है, उनका जो सोचने का दिमाग है, उनका जो एंगल ऑफ बिजनेस है, इज आउटस्टैंडिंग. और आई वाज मैं खुद उन पे बहुत इंप्रेस हुआ क्योंकि ये एज में अगर आदमी कोई बिजनेस का सोच सकता है, जो पेरेंट्स सब बोलते हैं नौकरी करो, जॉब करो, ये करो, वो करो. अभी ये कोरोना में क्या हो गया हमको मालूम है कि अच्छे अच्छे लोग की नौकरी गई है, अच्छा अच्छा का बिजनेस खराब हो गया है. मैं खुश नहीं उसको, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि फैक्ट्स क्या है. तो जो हमारा बिजनेस है, किड्स वो 18 20 21 इयर्स ओल्ड आर मेकिंग व्हाट इनकम. आई डोंट इवन से इट बिकॉज मैं अगर बोलता हूं तो पीपल डोंट बिलीव, बट वी हैव शोन द प्रूफ. somebody's made 14 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 48 lakhs, 68 lakhs. ये टाइप का इनकम दिया है, वो भी ये महीने के अंदर, अप्रैल 2021. अगर प्रूफ चाहिए तो यू कैन, आई विल शेयर माय नंबर हियर एंड यू कैन सेंड मी. आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप ऑफ द प्रूफ ऑफ इनकम. मैं ये आदमी से क्यों इंप्रेस था, ये जो लड़का है उससे मैं क्यों इंप्रेस था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. मैं इसलिए इनके साथ इंप्रेस था क्योंकि व्हेन ही वाज नॉट इवन 18, ही वाज आफ्टर मी. आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन. तो मेरे को लगा ये कोई क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत फोन आते हैं आई वांट टू जॉइन, और वो कोई दूसरे ग्रुप के होते हैं, कहाँ अलग जगह से होते हैं, तो मालूम नहीं पड़ता है कि सच है कि नहीं है. तो आई विल नॉट टेक मच टाइम. I would like to introduce this fantastic, talented person, and he's just 18. And I will not first. I'll get him on the screen. We'll talk to him first, and then he's going to show us the business plan. Imagine at 18 years old, he can show you the business plan. Imagine when he becomes 20, 25, 30, 35, 40, lifelong. I mean, ये business is not just lifelong; it's even after death. Because हमारा जो business है, मरने के बाद भी आपको इनकम मिलता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मरना है, आपको जिंदा रह के ऐसा पावरफुल टीम बनाना है, पावरफुल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है कि आपके 10 बच्चे भी ये इनकम से कमा सकते हैं. तो सॉरी, मेरा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स है. आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी एंड मराठी, बट मराठी पण येते मला. पण just to tell you, so I'll not waste time and get Sankit as a host, as a speaker for today's Zoom meeting. So Sankit, can we have you? Sankit, one good news is we already have 93 people. So Sankit, can we have you please? Sankit, I made you the guest speaker. I made you the co-host. Yeah. Okay. I can't see him. Where's Sankit? Sankit, can you please come? Okay, let me see if I can call him and invite him now. Okay. I just saw him. Oh, he's sorry. I think he's come as
Yes, I think we have him, right? I added somebody else in the group. Anyway, so Sanket, welcome and fantastic. Oh, great to see you at last. We always have these challenges, especially on social media, because मैं भी सीख रहा हूँ और कोरोना के टाइम पे मैं भी सीख रहा था. तो मेरे तो टोटल I'm in a total, sorry for my Hindi word, I'm in a total mess as far as social media is concerned, but I'm learning. So Sanket, welcome to our group, and I want to give you good news. You're 18 years old. You already have 100 people who are on Zoom with you today. So just imagine being at this age, 18 years old, and you already have 100 people, and I'm sure a lot of people are going to be on the waiting list. So, Sanket, I think your mic is on. Yes, sir, my mic is on. Okay, Sanket. So, guys, मैंने आपको संगीत का तो इंट्रोडक्शन किया है. ये 18 साल का बच्चा नहीं बोलूंगा, टीनेजर. I'll use a better word because when I say kids, अरे he's not a kid, उसका भी कुरकुर चालू हो जाएगा. तो मैं ये मेरे को पहले 2-3 सवाल है आपको. ये एज में जो 18 है, आपको क्यों फॉरएवर का, मतलब आपको फॉरएवर में क्या अच्छा लगा जो आप ये एज में, क्योंकि पेरेंट्स आपको बोलते हैं इंजीनियर बनो, मैट्रिक बनो, पायलट बनो, ये बनो, वो बनो, सब अलग अलग पेरेंट्स का सपना होता है, विच इज नॉट बैड, विच इज ऑल्सो राइट. सो व्हाट, आपको क्या अट्रैक्शन हुआ कि आप फॉरएवर जो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे फॉरएवर में इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे खुद के दम पे कुछ तो करना था. ठीक है, तो फॉरएवर के बारे में मुझे पता कैसे चला, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. लाइक मैंने आपको पहले भी मेरी स्टोरी बताई हुई है. जब मैं 12 पास आउट हुआ, सो उसके बाद हमारे घर में डिसीजन लेने वाले थे कि अभी इसका करियर का आगे का पाथ क्या होगा, आगे उसे क्या करवाना है. सो मेरा क्लियर विजन था कि मुझे पायलट बनना है. ओके, कमर्शियल पायलट. बट अगर कमर्शियल पायलट की बात करूं तो उसकी जो कॉस्ट होती है इंडिया में, अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो उसकी कॉस्ट लगभग आपको 70 to 80 lakhs होती है. पर अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो आपकी कॉस्ट 40-50 lakhs होती है. सो हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, एजुकेशन लोन के लिए. बट 2-3 बैंक में अप्लाई करने के बाद वो रिजेक्ट हो गया था. सो रिजेक्ट होने के बाद सब फैमिली वालों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अब तुझे इंजीनियरिंग करनी है. ठीक है, और इंजीनियरिंग करने के बाद तुझे एक जॉब ढूंढनी है. सो फिर अगर तेरे लक में ये होगा, ये अंडरलाइन करना इस वर्ड को, लक में, अगर तेरे लक में होगा पायलट बनना तो तू बनेगा, नहीं तो तू जॉब करेगा. पर मैं इस बात से सहमत नहीं था कि मुझे पायलट ही बनना था. मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था. सो उस रात को मैं जब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि अभी वो डिसाइड हो चुका था कि इंजीनियरिंग ही करवाना है इससे, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस देख रहा था. पर वहां पे आपके यूट्यूब चैनल से मुझे एक वीडियो रिकमेंडेड किया यूट्यूब ने. जब हम वीडियोस देखते हैं तब यूट्यूब हमें कुछ वीडियोस रिकमेंडेड करता है. तब वो वीडियो का मिस्टर तरंग अरोड़ा, उनके साथ आपका इंटरव्यू था, और टाइटल था उस वीडियो का, कॉलेज ड्रॉप आउट गाय मेक 3.83 lakhs rupees पर मंथ. उसके पहले भी मैंने वो वीडियो देखा था, पर मैंने पूरा नहीं देखा था. जस्ट लाइक मैंने वो टाइटल को पढ़ा और उसके बाद मैंने जस्ट इग्नोर किया. मुझे लगा कि यार ये झूठ होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. कॉलेज ड्रॉप आउट गाय मेक्स 3.83 lakhs इज अ ह्यूज अमाउंट. सो मैंने उस वीडियोस को इग्नोर किया था स्टार्टिंग में. पर उस दिन मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो, तो क्यों ना मैं इसे देखूं. सो मैंने उस वीडियो को पूरा एंड तक देखा. लगभग वो हाफ एन आवर की वीडियो थी. वो वीडियो को मैंने एंड तक देखा और उसके बाद मुझे पता चला कि ये फॉरएवर करके कोई कंपनी है जिसके साथ आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो. और उस बिजनेस को आप स्पेशली, मुझे अट्रैक्टिव हुआ कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू उस बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूँ. सो जैसे ही मैंने उस वीडियो को एंड अप किया, डिस्क्रिप्शन में मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिला. सो मैंने आपको सडनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मुझे बिजनेस के बारे में बताओ. पर तब मेरी एज 18 कंप्लीट नहीं थी. लाइक मैंने आपको मैसेज किया था अप्रैल या मई में 2020 में. पर आपने मुझे सजेस्ट किया कि पहले आपको 18 इयर्स कंप्लीट करना होगा और उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकोगे. सो पर वो जो मिन टाइम था, उस मिन टाइम में मैंने बहुत सारी रिसर्च की फॉरएवर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत पढ़ा. क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को कुछ मतलब हमारे पास ऐसे देखते कि यार हम ये क्या बोल रहे हैं.
हम क्या उनके साथ स्कैम करने वाले, फ्रॉड हो रहा है, दो के नीचे दो वाला है, चेन सिस्टम है, इलीगल है, पिरामिड स्कीम है, न जाने क्या क्या मुझे भी सुनना पड़ा था। और वो सबके साथ होता है, जैसे चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मुझे भी आए थे। मेरे भी फैमिली वालों ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुझे बिजनेस नहीं करना है, जॉब करनी है, इंजीनियरिंग करना है, डिग्री करना है। इंजीनियरिंग और डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, पर एक बात मुझे रियलाइज हुई थी कि अगर मैं इंजीनियरिंग करके जॉब भी करूंगा, ठीक है, जॉब कर तो लूंगा, पर मेरे जो सपने हैं मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा था जो भी हमारे सोसाइटी में लोग जॉब कर रहे, वो अपने लाइफ में सिर्फ सरवाइव कर रहे। सरवाइव करना और अपने लाइफ को अपने टर्म्स के ऊपर से जीना, सपनों की ओर बढ़ना और सपनों को देखना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो मैं ये देख रहा था कि जो लोग जॉब कर रहे हो अपने लाइफ को सिर्फ काट रहे, जी नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे। क्योंकि सबसे पहले एंजॉय करने के बाद आता है कि यार पैसे कितने हैं, मंथली बजट क्या है, अभी तो इतने काम बाकी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से लोन लिया था, वहां पर भी हमें रीपे करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। सो मैं वो मेरे लाइफ में नहीं चाहता। तो फॉरएवर में सबसे अट्रैक्शन मुझे हुआ वो चेयरमैन बोनस से हुआ था। जब पहली बार मैंने फॉरएवर के बारे में फॉरएवर का प्रेजेंटेशन देखा था, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन मुझे हुआ था चेयरमैन बोनस। सो वहां से मैंने आपसे बात स्टार्ट की थी। सो आप है सर यहाँ पे? Yeah. मैं I'm आपका there 100%. 1 minute. I'll just put ओके। my camera on. हाँ हाँ हाँ। I wanted people to concentrate on you. Okay, मेरा और एक हाँ सवाल है जो एकदम सिंपल सवाल है कि इतने जब कंपनी है, इतने मतलब कंपनीज है, सो व्हाट मेड यू अट्रैक्टेड यू टू फॉरएवर? मतलब यहाँ होलसेल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, एवरी कंपनी बोलती है हमारा लाल, मतलब सॉरी नॉट हमारा लाल, हमारा कंपनी अच्छी है, सॉरी सॉरी फॉर माय हिंदी बॉस। तो हर कंपनी बोलती है हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है। सो व्हाट मेड यू अट्रैक्ट, कि आपको जो अट्रैक्शन फॉरएवर में क्यों आया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, ना मुझे फॉरएवर के बारे में पता था। मैंने पहले भी बताया, मैंने जब वो वीडियो देखी, उस वीडियो में तरंग सर ने एक फॉरएवर करके वर्ड यूज किया था। सो मैंने गूगल पे जाके फॉरएवर डाला कि फॉरएवर क्या है। सो वहां पे बहुत सारी वीडियोस मुझे मिली, बहुत सारे, गूगल पे हम कुछ भी सजेस्ट करते तो गूगल हमें सारा दिखा देता है। सो बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारे आर्टिकल्स थे। तो मैंने जैसे जैसे फॉरएवर के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो अब एक बात रियलाइज हुई कि ये एमएलएम की कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। पर अब नेटवर्क मार्केटिंग ये वर्ड मैंने घर वालों को बताया कि मैं जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, सबसे पहले उन्होंने कहा तुझे करना ही नहीं है। उन्होंने सुना भी नहीं कि फॉरएवर क्या है, यहाँ से क्या मिल सकता है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है तो करना ही नहीं है, बस बात खत्म हो गई। क्यों हुआ था ये भी मैं रीजन यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि हमारे फैमिली में 3 लोगों के साथ स्कैम हुआ था, उसमें पहले मेरे पापा भी इंक्लूड थे। मेरे पापा को पकड़ के 3 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम हुआ था। स्कैम क्यों हुआ था? क्योंकि वो जो कंपनी थी वो मनी सर्कुलेशन करती थी। लाइक आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने और 2 लोगों को भी उनसे कराना है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, कोई भी सर्विस नहीं थी, ना ट्रेनिंग, ना स्किल डेवलपमेंट, कुछ कुछ नहीं था। सो उनके साथ वो हुआ था, तो उन्हें लग रहा था कि ये भी इसमें ही फंसने जा रहा है। सो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। पर यहाँ पे चेयरमैन बोनस पूरी तरह से घुस गया था कि नहीं यार, कुछ तो बात है। अगर कॉलेज ड्रॉप आउट गाय 3.83 लाख रुपीज कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? रिसर्च करना तब से ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे रिसर्च कर रहा था सॉरी बहुत। सॉरी, एक बेटा, वो जो 3.85 जो लाख था, दैट वाज नॉट चेयरमैन बोनस, दैट वाज हिज मंथली चेक। मंथली, हाँ वो तो मंथली। अब अभी तो उसका चेक इज 40 तो lakhs एंड बहुत हो 50 गया, lakhs इज ओनली चेयरमैन बोनस। अभी तो थैंक यू। बहुत हो गया। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था फॉरएवर के बारे में, तब बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग भी कंपनीज है ये मुझे पता चला। उसमें बहुत सारी थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनके साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। पर फॉरएवर में सबसे बढ़िया एक बात मुझे लगी कि फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी थी। सभी कंपनी के पास खुद के इन्वेस्टर होते, शेयर होल्डर्स होते, बैंक से लोन लेते। जैसे जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज के पास बहुत बड़ा लोन था सर पे, इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर्स थे। जैसे जैसे कंपनी लॉस में चली जाती गई, सब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, कंपनी बंद हो गई। फॉरएवर के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि फॉरएवर ने 1978 से लेकर के अभी तक बैंक से लोन ही नहीं लिया। मतलब पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक कंपनी थी। तो ये बात मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी कि नहीं यार, इस कंपनी में कुछ तो बात है, सीखना पड़ेगा, वो तो बाद में भी सीख सकते हैं। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले पता चला कि कंपनी ने अभी तक लोन नहीं लिया, लाइक वर्टिकली इंटीग्रेटेड।
मैन्युफैक्चरिंग खुद के पास था, एलो फीड्स खुद के थे, पैकेजिंग खुद का था, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट खुद का था, रिसर्च डेवलपमेंट खुद का था, टेस्टिंग, फिलिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी तक सब खुद का था। और जो साइमन सर ने मुझे एक बात बताई थी जब मैं उनके पास गया था बिजनेस देखने के लिए, कि फॉरएवर आपको एमआरपी माइनस टैक्स पे कमीशन देगा। लगभग 48% कंपनी आपको कमीशन देता है। वर्ल्ड में कौन सी कंपनी ऐसे दे नहीं सकती? क्यों नहीं दे सकती? अगर हम टाटा की बात करें, टाटा की एक कार एक फैक्ट्री में असेंबल होती है, एक पार्ट में, एक प्लांट में उनकी असेंबल होती है, पर उस कार को असेंबल करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं वो टाटा बाहर से बाय करते हैं। फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर का अगर एलोवेरा का जेल भी अगर फॉरएवर बनाती है तो उस प्रोडक्ट के लिए जो भी मटेरियल उनको लग रहा है, मटेरियल हो जाए, एलोवेरा हो गया, उसका पैकेजिंग के लिए कवर हो गया, सब कंपनी का खुद का है। सो किसी भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि नहीं, कंपनी के पास दम है, कंपनी के पास पैसे है, कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, अभी तक प्राइवेटली ओन कंपनी है और पैसे बहुत आ सकते हैं यहाँ से। वाह, फैंटास्टिक। आई मीन इट्स इतना ये मोटिवेशन है, स्पेशली गाइस। मैं ये तारीफ करना चाहता हूँ। मेरा एक और सवाल है विच इज टोटली डिफरेंट। व्हेन डिड यू बिकम 18 years old? मैं 18 इयर्स का कंप्लीट हुआ 2 मार्च 2021 को। पर बिजनेस के बारे में अगर बोलूँ तो मुझे बिजनेस के बारे में पता चला था मई 2020 को। तब से मैं आपके पीछे लगा था कि मुझे बिजनेस करना है। पर आपने एक सजेशन दिया था कि जब तक आप 18 के कंप्लीट नहीं होते तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। लाइक गवर्नमेंट के रूल है, पैन कार्ड चाहिए, है ना? आधार सो कार्ड। हाँ, आधार कार्ड भी हमें चाहिए। सो 18 इयर्स का कंप्लीट तब तक नहीं होते तब तक बिजनेस तो कर नहीं सकता था। तो जो जो मुझे टाइम मिला, लगभग 7 से 8 मंथ मुझे मेरे पास थे, तो उस मंथ में मैंने पूरी तरह से रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी बिजनेस करना है तो नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। जिस कंपनी के साथ, जिस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहा हूँ उसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। सीधा बिजनेस करना है इस करके उतर तो नहीं सकते, नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम को भी यूज किया, यूटिलाइज किया नॉलेज लेने के लिए। और जैसे ही 18 कंप्लीट हुआ, मैंने आपको मैसेज पहले ही 2 मार्च को 12 AM को ही मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि नाउ आई एम कंप्लीट माय 18 इयर्स। पर तब आपका फिर से मैसेज आया कि कंपनी का रूल है अभी पैन कार्ड भी चाहिए। मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था, तो फिर से हमने 2 दिन डिले किया पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड फिर मैंने आधार कार्ड से लिंक करवा के वो पैन कार्ड ऑनलाइन ही पैन कार्ड करके हमने सबमिट करके कर दिया। और आई थिंक हमने 11 मार्च को स्टार्ट कर दिया था। लाइक 5,000 की बिलिंग 11 मार्च को कर दी थी और बाकी की 25,000 की बिलिंग हमने 17 मार्च को जब आप पुणे आ रहे थे तभी कर दी थी। 2CC तो मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर दी थी। फैंटास्टिक। जब आपकी पूरी फैमिली वाज अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट थे ये बिजनेस के लिए, तो हाउ डिड योर फैमिली अप्रूव इट? मतलब हाँ बोला ओके डू द बिजनेस, ऐसा? मतलब पूरी फैमिली तो आजकल आप किसको भी, इवन माय पेरेंट्स, माय फादर यूज्ड टू से दिस इज यूजलेस, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये नहीं चलने वाला है, ये ऐसा है वैसा है। आई मीन दे गिव यू ऑल द एडवाइस, माय ओन पेरेंट्स। एंड बाय द वे मैं आपको गुड न्यूज बोलता हूँ, मेरे पिताजी मेरे को नालायक मुर्गा बोलते थे। तो मतलब ये टाइप का, एटलीस्ट यू आर लकी, योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू। तो फैमिली ने जो पहले नहीं बोल रहे थे, हाँ कैसा बोला? मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक फैमिली का पूरा सपोर्ट मेरे पास नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि जो सारे मेरे रिलेटिव्स थे और मेरी मॉम, वो लोग एक साइड में थे, मैं और मेरे पापा एक साइड में थे। मतलब अच्छा। पापा का ऐसा मतलब था कि इसे करना है, ट्राई करना है तो करने देते। पर बाकी लोगों का ऐसा होता है कि आप मत करने दीजिए क्योंकि ये तो फ्रॉड होने वाला है, स्कैम होने वाला है, कंपनी भाग जा सकती है, 30,000 आपसे ले रही है। तो मैंने बोला कि 30,000 ले रही है ठीक है चलो, पर सामने से प्रोडक्ट भी तो मिल रहे, यूएसए के प्रोडक्ट मिल रहे, इंटरनेशनल के जो सर्टिफाइड हुए प्रोडक्ट्स वो मिल रहे, उन्हें यूज तो करने को मिल रहा है। मतलब एक तरह से यही हो रहा है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर रहे, साथ ही साथ बिजनेस स्टार्टअप कर रहे। तो उन लोगों ने मुझे पूरी तरह से मना ही किया था। लाइक नवंबर अक्टूबर तक पूरी तरह से मैं हर रोज कुछ ना कुछ नई तरकीब निकाल के बिजनेस के लिए अप्रोच करता था उनको कि मैं करूँ नहीं करूँ। तो उन्होंने एक बहुत फनी किस्सा भी हुआ था मेरे साथ, मैं वो बताना शेयर करूंगा कि उन्होंने मुझे बताया था कि ये बिजनेस की जीत छोड़ दे, मैं तुझे आईफोन दे दूंगा। बिजनेस की जीत छोड़ दे, मैं तुझे आईफोन दे दूंगा। अभी तो एक डायलॉग मार सकता है, अभी है ना, एक काम करो, मैं आईफोन खरीद लूंगा लेकिन खुद के पैसे से। तो मैंने उस वक्त भी वही कहा कि मैं आईफोन लूंगा पर खुद के पैसे से लूंगा ना।
अभी आईफोन लेने का जाएंगे तो 1 लाख प्लस जाएगा, 1 लाख के अर्से आप मुझे 30,000 यहाँ पे दे दीजिए, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो भी बहुत सारे मतलब मैं रोज कुछ खुरापती आइडियाज निकालता था और उनको अप्रोच करता था। शाम को जब पापा आते थे फिर से उनके पीछे में लग जाता था कि मुझे करने दीजिए करने दीजिए। तो ऐसा बहुत लाइक 2-3 मंथ्स तक ऐसा चला। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसे करने भी देते और नहीं भी, मतलब कंफ्यूज थे। तो मैंने अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछे थे और वो वहां से मेरी डिसीजन बहुत फाइनल हो चुका था और फैमिली का भी डिसीजन अब फाइनल हो चुका था। वो 2 सवाल बहुत बढ़िया थे। सबसे पहले सवाल मैंने अपने आप से खुद से पूछा कि ये लोग जो है, ये फैमिली वाले तेरे बुराई तो नहीं चाहेंगे, कि तेरा बुरा हो ये तो नहीं चाहने वाले। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि डिग्री ले, जॉब कर, ये करके तुझे तेरे सपने पूरे कर सकता है तू? तो उसका जवाब आया कि नहीं, सपने तो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं देख रहा था कि जॉब वाले लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि ये जो बिजनेस तू बोल रहा है फॉरएवर का, उसमें अगर तू चला गया तो क्या तेरे सपने पूरे हो सकते हैं? तो आंसर ये भी नहीं था कि 100% श्योर था कि मैं हो सकते, क्योंकि मुझे फॉरएवर का पोटेंशियल पता ही नहीं था, सब ऊपर ऊपर की नॉलेज थी। तो आंसर ये आया कि मैं पूरा कर सकता हूँ। जॉब का कंपैरिजन करें तो वहां पे आंसर था कि नहीं कर सकता, यहाँ का आंसर था कि मैं कर सकता हूँ, ट्राई तो जरूर कर सकता हूँ और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। इवन अगर हम डेटॉल वगैरह उन कंपनीज की बात करें, वो भी तो अपने प्रोडक्ट पे थोड़ी ना कहते कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए 100% आपको रिजल्ट आएंगे। वो भी तो कहते 99.99% जर्म्स क्लीनिंग, है ना। अभी डेटॉल की एड आती है सैनिटाइजर लाइफ बॉय, वो भी तो कहते हैं 99.99%, वो थोड़ी ना कहते कि 100%। तो फॉरएवर के बारे में मेरा आंसर था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। जॉब में था कि नहीं हो सकता, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज था। तो मैंने फिर से वही आइडिया लगाकर रोज अलग अलग एग्जाम्पल्स में लेके आता था, कुछ वीडियोस ढूंढता था। उसमें मैंने कृष्णा सर की वीडियो दिखाई थी, तरंग सर की वीडियो दिखाई थी, आपका जो इंटरव्यू हुआ था, आपका यूट्यूब चैनल भी दिखाया था। मतलब मैं ये जो उसके लिए प्रयास करता था, वो लगभग मैंने 5 से 6 मंथ तक, 5 to 6 मंथ मैंने हर रोज ये काम किया है कि रोज नई नई आइडिया निकालना है और उनको अप्रोच करना है बिजनेस के लिए, घर वालों के लिए, कि एट लास्ट जाकर के मुझे वो एक परमिशन दे दे कि करना है बिजनेस। और दिवाली में, पिछले साल की दिवाली में भी आपके साथ मैंने उनकी जूम मीटिंग भी करवाई थी कि अगर और डायरेक्टली आपके साथ देखोगे तो कुछ हो सकता है, पर इतना करने के बाद भी डिसीजन नहीं हुआ था लाइक। पर ठीक है, फाइनली जाकर के उन्होंने डिसीजन दे दिया कि चल ट्राई तो कर ले, और अभी कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया तरह से कर रहा हूँ। I think your dad had come to meet me in my Pune flat. हाँ I think वहां से उनका डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया. हाँ, क्योंकि मैंने उनको इसलिए बुलाया था, इसलिए मैंने आपको पहले ही फोन करके कहा था कि मैं अपने पापा को भी साथ लेके आ रहा हूँ, तो आप उनको बिजनेस अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, क्योंकि फैमिली वालों को भी तो पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में जा रहे हैं उस बिजनेस में सच में पोटेंशियल है या नहीं है। तो आप जब हम आपके घर पे आए तब आपके मैंने आपकी पार्किंग में जो कार थी आपकी ऑडी A6, मैंने वो भी दिखाई। उसके पहले मैंने घर से उनको वीडियो भी दिखाया था, आपका सक्सेस डे पे जो आपने इंटरव्यू दिया था फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव के, मैंने कैश डाउन कार बाय की थी, वो वीडियो भी दिखाया था। वहां पे जाकर के कार दिखाई, आपका हाउस दिखा, आपने पूरी तरह से अपने वो जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे पूरा मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया, सभी कंपनीज के साथ कंपैरिजन किया। कॉर्पोरेट में जो हम कह सकते हैं स्कैम होते हैं कॉर्पोरेट में, जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कॉमन सा ऑब्जेक्शन है कि सब लोग कहते हैं कि सब ऊपर वाले पैसे कमाते, है ना, सब ऊपर वाले पैसे कमाते। तो आपने वो भी डाउट क्लियर कर दिया था कि ऊपर वाले पैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ऊपर वाले पैसे कॉर्पोरेट में हो गया, एनी अदर इंडस्ट्री में वहां पे होता है। सो वहां से उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट हुआ कि नहीं यार, कुछ तो बात है, अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हर बंदा सक्सेसफुल होने ही वाला है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इस मंथ में बिजनेस स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ से आपको 30,000 40,000 आ सकते हैं, पर पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, क्योंकि मेहनत है, बिजनेस है, इससे लीगल बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोगों को मिलाया और आपको अभी 1 लाख आना स्टार्ट होगा, है ना। सिस्टम को फॉलो करके मैं बिजनेस करना है, पूरी तरह से स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, और बहुत कुछ सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें। वाओ, फैंटास्टिक. मैं और सवाल नहीं करूंगा बिकॉज आई एम श्योर हमारा जो ऑडियंस है उनको आपका आप किस तरीके से बिजनेस समझाते, देयर लॉट ऑफ गुड कमेंट्स कमिंग, दे ऑल अप्रिशिएटिंग योर वर्क एंड योर वे ऑफ थिंकिंग. सब लोग अच्छा कमेंट पास रहे, लेकिन आप थैंक कमेंट पे अभी ध्यान मत दो.
because you better to you to concentrate on. आप अभी जो बिजनेस है, मैं सुना कि आपने ऑलरेडी 10-15 डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी बनाए। 10 लोगों को तो मैं मेरे टीम का पार्ट बना चुका हूँ, और लगभग अभी भी 10 से 12 लोग ऐसे कि जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। सो इस मंथ में तो नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ आने वाले 2 मंथ में साइमन सर की टीम से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकलने वाली है आने वाले 2 मंथ में। ये इसका इस लाइव सेशन में एक कमिटमेंट यहाँ पे करता हूँ कि 2 मंथ में यहाँ से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकलने वाली है। Now guys, you can see why I'm smiling. Fantastic. नहीं, मेरे को मैं ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. Of course we'll have a question answer maybe some other day. But आप मैं आपका why liked, sorry my हिंदी जरा गड़बड़. So मेरे को क्यों आपका एटीट्यूड पसंद आया? आपने खुद का पावर पॉइंट बनाया, आपने खुद का प्रेजेंटेशन बनाया, आपने मेरे से सब हेल्प लिया, लेकिन यू डिडंट कॉपी पेस्ट. You बोलो no, I'll make my own team. You made your own cream, which is called Freedom Group. Freedom Group, yeah. तो आपका खुद का टीम आपने बनाया Freedom Group, which is fantastic. मतलब what I'm impressed is 18 years old, and at this age आप, क्योंकि हम लोग का इसमें जो भी ज्वाइन करते ना, अरे ये दो मेरे को ये पावर पॉइंट दो, ये मेरे को चाहिए, वो चाहिए, और कल फेलियर हो जाएंगे तो पूरा ब्लेम हमको ही करेंगे. Which I liked about you is you did your own PowerPoint. You asked me for whatever like different photographs. हाँ, पावर पॉइंट के ऊपर हमने फरवरी में ही काम कर दिया था. मैंने आपको कॉल भी किया था कि सर मैंने पावर पॉइंट बना दिया है, आप आकर के देख लेना कि मार्च से फिर हम बिजनेस को स्टार्ट कर सके. तो हमने जो मैंने पावर पॉइंट बनाया था वो मैंने फरवरी में बना के रेडी रखा था. मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते कि मैं पूरी तरह से रेडी था, 2 मार्च की सिर्फ वेट कर रहा था. ओके सर, फैंटास्टिक. और ये देख के ना आपका मैं देखा भाई ये तो यार ही इज मेकिंग ओन पावर पॉइंट, इज मेकिंग ओन एंड बीइंग न्यू, मतलब नया होने के बाद आप ये सब कर रहे हैं, which was amazing. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. I will give you this Zoom meeting. You can share your screen and show your PowerPoint and show them what you have done and how you have done on your own without my help. Only मैंने जो थोड़ा 1-2 फोटो दिया आपको, लेकिन आपने खुद पे क्या किया है. मैं ये चाहता हूँ कि हमारे 100 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स है, and at this age it's fantastic. So I want you to show आपका जो आपने पावर पॉइंट बनाया, किस तरीके से आप बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं. I want you to show to the audience. So guys, first of all let's thank him. सब लोग if they are happy with him just type 1. तो मैं जरा कमेंट में कि let's encourage a youngster. Okay, सब लोग good, great, outstanding, nice. 1, अच्छा 1 का मतलब हाँ it's good. 2 का अगर 1 डालेंगे तो ही इज वेरी गुड, 2 डालेंगे तो आई एम गुड. तो गाइस also हो जाए 2. नहीं, आई थिंक लेट्स स्टिक टू 1 ओनली. Thanks a lot guys, I think we should encourage youngsters like this, because it is a dream to make youngsters powerful, successful, and they are the future of not just the country but of the business worldwide. So thank you. I'll let you share your screen. I've already made you the co-host. So all the best. I'm here. I'll be watching the full thing. So please carry on. आपका स्क्रीन दिख रही है मेरी? या स्क्रीन दिख रहा है. स्क्रीन इज गुड, स्क्रीन इज वेरी गुड. तो मैं यहाँ से जी बिल्कुल. सबसे पहले आप सभी सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस सेशन में. इस सेशन में हम पूरी तरह से फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्या है, किस तरह से फॉरएवर का बिजनेस प्लान होता है, और हम फ्रीडम ग्रुप किस तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं. सो यहाँ से आप बहुत सारे स्किल्स, कुछ पॉइंट्स भी नोटिस कर सकते हो. आगे जाकर के आप उन्हें अपने पीपीटी में भी, पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हो. जब आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हो तो किन बातों पर ध्यान रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मेरा बेस्ट यहाँ पे दे सकूं आप सभी लोगों को. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए एंड मेक श्योर योर मीडिया वॉल्यूम ऑन रखना, सो मेरी आवाज आप लोगों तक आए. और आप सभी तरह से जो भी डिस्ट्रैक्शन होंगे उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर लेना.
पूरा ध्यान अब स्क्रीन के ऊपर रहना चाहिए। सो मैं यहाँ पे बताता हूँ जो मैंने फ्रीडम ग्रुप की कम्युनिटी की जो शुरुआत की थी। सो फ्रीडम ग्रुप में आप सभी को पता होगा कि हम क्या करते हैं। फ्रीडम ग्रुप इज अ कम्युनिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे हम एक ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिस ट्रेनिंग सिस्टम में हम आपके स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, बहुत सारे स्किल्स के, सोशल मीडिया का यूज हो गया, ब्रांडिंग हो गई, सारी चीजों पे काम करते हैं और वहां से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं अपने बारे में अभी तो आपने आपको बता दिया, तो शॉर्ट में बताता हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ द फ्रीडम ग्रुप। मेरा नाम संकेत नेड़े है एंड मैंने 2020 में सबसे पहले मुझे बिजनेस के बारे में पता चला था, फैमिली के साथ डिस्कशन हुआ, एज यूजुअल रिजेक्शन आना ही था, रिजेक्ट हो गया। जून 2020 से मिला, जून पर भी हमारी मीटिंग हुई थी। वहां से मैंने बिजनेस को समझ लिया, फिर एक्शंस लेना स्टार्ट किए। एक्शन किस बात के एक्शन? नॉलेज लेना स्टार्ट किया, स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली मार्च 2021 में मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसे शुरुआत करी। सो ये जो सेंचुरी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, सभी लोगों के सपने अभी बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें तो इस सेंचुरी में हर बंदे को क्या चाहिए? नो बॉस। बॉस नहीं चाहिए, बी योर ओन बॉस, खुद का बॉस बन के रहना है ना। किसी के हाथ के नीचे काम करने को बहुत सारे लोगों को भी नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे यंगस्टर्स तो यही बोलते कि बी योर ओन बॉस, पर सभी लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड चीज जो होती हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी और आपकी फैमिली की। आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, ड्रीम कार, हर एक बंदे की कोई ड्रीम कार होती है, ड्रीम हाउस होता है, कुछ सपने होते हैं बचपन में। हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये कार होनी चाहिए मेरे पास, मेरे फैमिली के पास, सो हम इसमें घूम सकते हैं। लग्जरीज कार हो सकती है, आपकी ड्रीम कार कोई भी हो सकती है। सेकंड होता है कि कॉम्प्रोमाइजेस, फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, खुल के जी सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जॉब वाले लोग क्या करते हैं, लाइफ को तो जीते पर एज अ कॉम्प्रोमाइज करके जिएंगे, क्योंकि उनके पास एक मंथली बजट होता है, उसके अंदर ही उनको पूरी तरह से लाइफ सर्वाइव करनी होती है। बिजनेस की बात करें तो आपका इनकम आप डिसाइड करते हो। सेकंड होता है कि टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम मतलब क्या होता है? टाइम फ्रीडम मतलब आपको जब चाहे तब आप बिजनेस कर सकोगे और जब चाहो तब पैसे भी आ सकेंगे, पैसिव इनकम भी यहाँ से आता है। सो टाइम फ्रीडम यहाँ पे बहुत जरूरी है। सेकंड आता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। 2020 में क्या हो रहा था? 2020 में सिंपल लोग, बहुत सारे लोग जॉब के ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब वन सोर्स था इनकम के लिए, एक्टिव इनकम। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, सैलरी आधी हो गई, बहुत कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स उन्हें, फाइनेंशियल ऑफ इनकम हो गए। तो क्या होगा? आप कोई जॉब कर रहे हो, आप टाइम में बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कर रहे हो, वेल एंड गुड। सो आपको यहाँ से भी इनकम आ रही है, यहाँ से भी इनकम आ रही है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आगे जाकर के कल से फिर से लॉकडाउन हो गया, आपकी जॉब भी चली गई, तो क्या होगा? यहाँ से आपको मल्टीपल, है ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। सेकंड क्या आएगा देखिए, कि पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ हर बंदे को अच्छी लगती है। अब उस पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है, बात अपग्रेड होती है। बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रोथ हमें कहाँ से मिले? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सीख भी सकते हो, साथ ही साथ कमा भी सकते हो। सो नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो ये जो चैलेंजेस है, ये हर बंदा फेस करता है। सबसे पहला, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब वो प्रेडिक्ट किस तरह से नहीं कर सकता? 2020 के पहले हमें किसी को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, एनीथिंग। बहुत सारे चेंजेस हुए जॉब में, कॉर्पोरेट में बहुत सारे चेंजेस हुए। सो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आगे करके क्या होगा, आगे जाकर के क्या होगा वो भी पता नहीं है। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, करेंटली जॉब कर रहे हैं, उनके पास। सेकेंड आता है कि जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पता ही है कि कभी भी मेरे जॉब जा सकते हैं। अगर सामने वाले जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, उस कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो आपकी जॉब भी जा सकती है, जॉब खतरे में हो सकती है। सो ये जो चैलेंज है कि जॉब सिक्योरिटी।
थर्ड चैलेंजेस आता है कि भाई अभी एक फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है कि फ्यूचर में जॉब रहेगी नहीं रहेगी, जॉब सिक्योरिटी का टेंशन होता है आपके माइंड में, आप अनहैप्पी होते, इसकी वजह से बोर हो जाते, वही वही वर्क करके स्ट्रेस आउट होते। और थर्ड चैलेंज है सैलरी इनकम होती है विद नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब ये सैलरी इनकम क्या होती है? ये इनकम ऐसी इनकम होती है, अगर मान लीजिए कि आपने 20,000 को एक जॉब को ज्वाइन किया, जब तक आपकी इनकम 1 लाख को क्रॉस करेगी तब तक आपका रिटायरमेंट का एज नजदीक आ जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब में इंक्रीमेंट नहीं होगा, जॉब में भी इंक्रीमेंट होती है पर बहुत स्लोली होती है, बहुत स्लोली जॉब में इंक्रीमेंट होती है, बहुत सारे उनके वही एक्सपेंस से मिल नहीं सकती। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी अमाउंट होती है कि जो अगर आपके पास हो तो आप और आपकी फैमिली अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइजेस आप और आपकी फैमिली अच्छी तरह से सर्वाइव करे, इसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास। 1940 की बात करें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था 10 रुपीज, 1960 में 100 रुपीज, 1980 1,000 रुपीज, 2000 10,000 रुपीज, 2020 70,000 टू 1 लाख रुपीज। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकोगे कि 2025 तक कि किधर तक ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जा सकती है? 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि अगर वो आपके पास हो तो आप और आपकी फैमिली अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए? 10 लाख, या दिलीप गुप्ता सॉरी दिलीप गुप्ता, उनको लगता है कि 10 लाख रुपीज होनी चाहिए, एक गन के लाख के 1 CR, मोर देन 2 लाख, 5 लाख, इस तरह की फाइनेंशियल अमाउंट जो थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो होने वाली है। पर बहुत सारे लोग इसके लिए रेडी नहीं होते। रेडी क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, पर अगर हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो वहां पे कुछ तो करना होता है, मेहनत करनी होती है, विदाउट मेकिंग नहीं है। तो ये बस तो बढ़ने वाला है, लोग रुकने वाले नहीं है। बहुत तेजी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी ज्यादा। सेकेंड आता है कि सॉरी ये ESBI मॉडल, हम सबको इस मॉडल के बारे में पता है। इस मॉडल इन्वेस्टर है के जरिए ये कहा है कि हाउ एवरीवन मेक मनी। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं वो इन्हीं 4 सेक्टर से कमाते हैं। ESBI, ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेस ओनर, आई का मतलब इन्वेस्टर। अब ई क्या होता है? ई होते किसी और के लिए काम करोगे और उनको सैलरी मिलती है। अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते? खुद के लिए जॉब क्रिएट करते, लाइक छोटी सा शॉप हो गया या छोटा सा बिजनेस हो गया, वो खुद के लिए काम करते, खुद के लिए कमाते, सेल्फ एम्प्लॉय हम उन्हें कहते हैं। पर उन्होंने ये कहा है कि जो ई और एस कैटेगरी, इस कैटेगरी में लगभग पूरे वर्ल्ड से 95% पॉपुलेशन वर्क करती है। पूरे वर्ल्ड में से 95% पॉपुलेशन वर्क करती है, पर यहाँ पे जो वेल्थ आती है, वेल्थ ओनली ऑन 5% होती है। अब ये वेल्थ और मनी, इसमें बहुत डिफरेंस है। वेल्थ और मनी का डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो वेल्थ आती है वो आती है सिर्फ 5%। पर अगर बी की बात करें, बी की बात करें, बी का होता है बिजनेस ओनर, आई क्या होता है? इन्वेस्टर। बी बिजनेस ओनर, उनके लिए लोग काम करते, आई इन्वेस्टर, उनके लिए पैसे काम करते। सिंपल। आई मतलब इन्वेस्टर, उनके पास क्या होता है? पैसे पहले से ही होते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो पैसे कमाते, वो होते इन्वेस्टर होते, उनके लिए पैसे काम करते हैं। बिजनेस ओनर, उनके पास खुद का नेटवर्क उस वर्क करती है। पर अगर पैसे की बात करें, मनी की बात करें तो 95% वेल्थ यानी कि पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे मौजूद होता है। सो वेन एवर इफ यू वांट टू गेट रिच, अगर आपको रिच बनना है तो आपको मूव करना पड़ेगा। मूव करना पड़ना है मतलब क्या करना है? यू डोंट नीड अ न्यू जॉब, आपको नई जॉब की जरूरत नहीं है। नई जॉब मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो 20,000 पे, पर आप 20,000 से खुश नहीं है, आपको सैलरी बढ़ के चाहिए, तो आप जॉब चेंज करोगे। अगर आपने जॉब चेंज किया तो आप उस प्रॉब्लम पे, जो भी आपका प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, वेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, उस प्रॉब्लम पे आप टेम्पररी सॉल्यूशन निकालते हो अगर आपने जॉब चेंज किया।
आपको मूव करना पड़ेगा, आपको नई एड्रेस की जरूरत है। अगर आप ई और एस कैटेगरी में हो तो आपको ये ढूंढना है कि मैं किस तरह से बी और आई कैटेगरी में आ सकता हूँ। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम सब बी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का नेटवर्क होता है। तो बात करते हैं कि हाउ डज एम्प्लॉय अर्न, एम्प्लॉय अर्न कैसे करते हैं। रफली चार्ट है कि एम्प्लॉय किस तरह से अर्न करेंगे। नॉर्मली एम्प्लॉय 8 घंटा, 8 आवर्स, 8 आवर्स इन अ डे वर्क करना है। पूरे हफ्ते में 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हम ऑफ रखते हैं। ठीक है। सो यू वर्क 8 आवर्स इन अ डे, मल्टीप्लाई 5 डेज अ वीक इंटू 50 वीक्स। अगर पूरे ईयर की बात करें तो लगभग 50 वीक्स, मतलब 50 हफ्ते आपको काम करना होता है। हर दिन आपको 8 घंटा काम करना है। मतलब आपका जो काम होने वाला है पूरे साल भर में, वो आपको करना है 2000 घंटे। 2000 घंटे काम करेंगे आप पूरे साल में। पर अगर बात करते तो हम 40 साल, मिनिमम 40 ईयर्स तो हम जॉब करते हैं। सो पूरे हफ्ते में 2000 आवर्स into multiply 40 years in a lifetime, you have to work 80,000 hours in a lifetime। पूरे लाइफ में आपको लगभग 80,000 घंटे से भी ज्यादा काम करना होता है। अगर हम बात करें कि पूरे दिन में आप 8 घंटा काम करते हो, पूरे लाइफ टाइम में आप 80,000 आवर्स वर्क करते हो, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको जो पेमेंट मिलता है, जो पे मिलता है, वो आपको पे किया जाता है ₹200 पर आवर। पूरे लाइफ टाइम में आपकी जो इनकम होती है वो होती है 1.6 ईयर पूरे लाइफ टाइम में। अगर किसी भी बंदे का अगर सपना होगा कि मुझे रोल्स रॉयस खरीदी करनी है, तो उसका सपना लाइफ टाइम के लिए वो सपना ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से वो कभी खरीद नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी जो नेटवर्क, ये बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर होते हैं, बी कैटेगरी सिंपल होता है, बी कैटेगरी में होता है नेटवर्क। और नेटवर्क के जरिए बनती है यहाँ पे नेटवर्क। यहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स दिख रहा है। मैकडोनल्ड्स का बिजनेस जो है, मैकडोनल्ड्स का बिजनेस दो तरीके से चलता है। सबसे पहला, वो अपने पास जो भी प्रोडक्ट है, हैम बर्गर्स हो गए, मिल्क शेक हो गया, कॉफी हो गई, या फ्रेंच फ्राइज, और बहुत सारे उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है उन्हें वो सेल करते, उस तरह को सेल करते। जो उनके फाउंडर थे, उस फाउंडर को सबसे पहले ये पता चल गया था कि अगर मैं अपने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ, मुझे सिर्फ अपने प्रोडक्ट से सेल करने, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। पर अगर मैं अपने फ्रेंचाइजी को ही सेल करूँ तो मुझे स्टार्ट कर दिया। और लगभग 2020 की बात करें तो उनके पास 38,000 से भी ज्यादा का नेटवर्क बन चुका है। अमेजोन ने क्या किया, जो भी छोटे छोटे शॉप नेटवर्क बना दिया। ओला उबर, जो भी कैब ड्राइवर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, उन सब लोगों को एक साथ लेके आए और वहां पे उन्होंने बना दिया अपना नेटवर्क। ओयो, रितेश अग्रवाल, उन्होंने क्या किया, जो भी अपना 5 स्टार होटल से नीचे जिस भी होटल की रैंकिंग बना दिया, अपना नेटवर्क बना दिया, उसे नाम दिया ओयो। सो नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क बहुत पावरफुल होता है। सो इफ यू पहले तो आपको कोई वो बनाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर का चार्ज चाहिए तो आज के करंट में, प्रेजेंट में आपको अपने इनकम सोर्स का कंट्रोल लेना होगा, और इनकम सोर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपका जो भी इनकम होता है, वो इनकम का जो सोर्स का जो कंट्रोल होता है वो किसी और के हाथ में होता है ना। सो नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, ये तो कंसेप्ट अभी हमें समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर है, इनकी अर्निंग इस तरह से क्यों होती है, नेटवर्क का डिफरेंस क्यों पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस ओनर है, इन्हों इनके पास 10 पर डे, जिसके हिसाब से काम कर दिन में लगभग 80,000 आवर्स से भी ज्यादा का काम हो रहा है। बिजनेस ओनर के पास जो नेटवर्क है, 10,000 एम्प्लॉय का, जो खुद के लिए 8 घंटा, 8 आवर्स पर डे काम कर रहे, वर्क कर रहे, हो जाता है 80,000 इन डे, 80,000 आवर्स। प्रॉफिट का मान लेते, पर आवर उनको सिर्फ मिलता है ₹50 का प्रॉफिट, पर आवर सिर्फ ₹50 का प्रॉफिट। उनके पूरे वीक का जो प्रॉफिट होगा, किस अर्न करते हैं।
उनकी लाइफ टाइम का इनकम होता है 1.6, 5 दिन का इनकम होता है 2 CR। डिफरेंस क्या है उन दोनों में, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे? एम्प्लॉई और ओनर। आपका आवाज कट हो रहा है, आपका आवाज बहुत कट हो रहा है संकेत, आपका आवाज कट हो रहा है। मैं फिर से ज्वाइन करूँ क्या? नहीं नहीं, फिर से ज्वाइन मत करो, बट मैं don't ask lot of questions because then half the people can't hear what you're saying. जी So मैं don't join again because you already finished nearly 80%. Okay, guys. Guys, we're having some network issue in Pune, not here, not in my place. So till he gets connected again. I think ये बहुत अच्छा है कि अमेजिंग है जो 18 साल का बच्चा इतना अच्छा से बात कर रहा है। और मेरे को क्या अच्छा लगा, इसका दिल से बात कर रहा है। तो मैं और एक गुड न्यूज देने वाला हूँ, मैं एंड में देने वाला था, तो मैं सोचा अभी दे दूं कि नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू हैव अनदर, I cannot call them kids, I would like to call them teenagers. Another guy, I'm going to call him as a guest speaker, and he's 20 years old. So so the topic is going to be a kid who's 20 years old. Please understand what I'm saying. A kid who's 20 years old making 6.5 lakhs per month. एंड आपका तो फिर वहां कुरकुर तो होने वाला है, कमाता है क्या नहीं है, तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट ही शोज द प्रूफ। तो इनकम का भी प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि बहुत जन क्या है, प्रूफ पर बिलीव नहीं करते, बोला है कि नहीं, बोल बच्चन है, ये है वो है। एंड मेरा ये भी एडवाइस है आपको कि आप किसी भी चीज का एडवाइस लेते ना, टेक द एडवाइस फ्रॉम पीपल हु नो द बिजनेस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट नो व्हाट द बिजनेस इज। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेटर बनना है तो विल यू गो टू सुनील गावस्कर और लता मंगेशकर, विल यू गो टू सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर? तो आप जो एडवाइस लेते हैं, लो एडवाइस, बट जो ये फील्ड का नॉलेज है, don't take advice from people who don't know this business. So we'll just wait for him. Let me find out. I'll try to phone him up and find out why he's joining again. Of course he'll join again because as you see, इतना गो गेटर है ये आदमी, जो मेरे को बहुत पसंद आया। ये लड़का बहुत पसंद आया मेरे को, क्योंकि इतना पैशन से वो बात, अगर आप उसका बात भी सुनेंगे तो बहुत पैशन से करता है। तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, आई जस्ट कॉल हिम राइट नाउ। So just give me a minute. Okay. Where are you? Okay, guys, he's having a little technical problem with the Wi-Fi, but anyway, he'll be connected because we don't want to, हम लोग को उनका बात मिस नहीं करना है, और हमको उनको एक encouragement करना है. So I want all of you after the meeting, just give him a thumbs up or a good like, something that gives positive energy. See, आजकल के तारीख में with this all these negative things going on, positive energy really helps. तो आप इस तरीके से धमाल कर सकते हैं, और in the meantime, till he comes, we've got fantastic people in our leaders. All the top leaders have come here. So Rajiv Mehta is here, and I can see, let me see who else I can see. So I'll, in the meantime, we can make him speak. Okay, I think we have Bharat Bhai also here. Yeah, Bharat Shah is also there. So thanks Bharat, thanks Rajiv. And we have Medha Deshpande again. Fantastic. She's a doctor and she has got fantastic knowledge on the products. If you have seen some of her trainings, very good. In fact, on my YouTube channel, and she also has her own YouTube channel. So subscribe her YouTube channel. And on my YouTube, I also put 2-3 videos of hers. So thanks, Medha again. And then we have, let me see anybody who I one of the top leaders. We have Dinesh. We have Zoeb. Now Zoeb is again fantastic with the social media. He's another go-getter in our team. He's doing wonderful. So I think one of the days we should have a meeting
We have Dr. Kumar also in the group. So thanks, Doc, for coming. So we have some fantastic people, and we have Dr. Anurita from Pune. She's again a mind-blowing person. Forever is in her blood, so she's again fantastic. So guys, this is the type of and you should see Dr. Anurita's training also. They're very good. So thanks, Doc. Then we have let me see who else I have. We have Praful again. So Praful Ujagre is we call him the Singham of our group. So till he joins, if I can have Praful to speak. So I will open his start the video. Okay, let me see if I can add him, allow him to speak. So I'll make co-host. Okay. So Praful. Hi, Praful. Yeah, I'm here. No, I think people would like to see your chehra also. See the advantage. I'm in a leisure mode. I'm in a luxury mode now. It's okay. It was nice to see this chap here. 20 साल का लड़का जो बात कर रहा था, and कितना insights है उसके अंदर, कितना powerful thoughts है उसका process, कितना powerful है, कितना clear है as to what to do and what not to do. वो क्लैरिटी देख के मैं आई एम सरप्राइज, लाइक यू नो, ये जनरेशन में कितना स्पार्क है, कितना पावर है, एंड वाह, मान गए. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू डियर मेंटर. और बस एंड दिस इज ये नए जमाने का बिजनेस है, और ये नए जमाने के बच्चे अपने अपने आइडियाज लेके आते हैं. अभी तो हम लोग वी आर नियरिंग 60s, तो दिस इज द बिजनेस ऑफ न्यू जनरेशन. लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, सडनली चेंज तो होना चाहिए, न्यू लीडरशिप आना चाहिए, नई आइडियाज आना चाहिए, सब समथिंग, एवरीथिंग हैज टू बी रिप्लेनिश्ड. तो ये रिप्लेनिश हो चुका है, एंड द बैटन इज इन दिस बच्चे लोग के हाथ में है. तो वेलकम, और हमको सिखाओ, एंड वी आर रेडी टू लर्न, एंड वी विल आल्सो प्रॉस्पर. थैंक यू सर. Thanks a lot, Praful. Praful, if you can make your mic on silent, it was amazing. You know what I like about leaders like Praful, Bharat Bhai, Rajiv, and the rest, like Dr. Meda and Anurita. What I like about them, they're always ready to learn. So imagine we are learning from somebody who's 18 years old, and it was amazing to know that. So thanks a lot. I think we have Sanket again. So if we can have you. Sanket, you can start. Thank you. वो थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था. नहीं, no problem. I think everybody is so impressed with you. So even if your 1-2 words disappear, we'll add them. Thank you. नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो. अभी एक हमारा one of our leaders, Mr. Praful Ujagre, he was I just got him as to speak something, so he was very impressed with your speech. So all the best, and मैंने देखा सर. Thank you. So मेरे स्क्रीन और वॉइस आ रहा है अभी. Perfect. Very nice. Just carry on. Don't worry. Okay. Don't worry. Now don't have a break. Finish till the end. Carry on. Okay. So यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बिजनेस, या जो ये बिजनेस ओनर होते हैं अर्न किस तरह से करते हैं. So यहाँ पे हमने देखा कि बिजनेस ओनर है, उनके पास खुद का नेटवर्क है 10,000 एम्प्लॉय का, जो खुद के लिए 8 आवर्स काम कर रहे हैं. So उनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो 2 CR से बन रहा है. एम्प्लॉय हमने देखा, एम्प्लॉय वाली स्लाइड है, वो पूरे लाइफ टाइम में अर्निंग जो करते वो लगभग करते 1.6 CR तक. पर ये जो बिजनेस ओनर होते हैं ये अर्निंग करते हैं पूरे अपने वीक में, सिर्फ एक वीक में लगभग करते कि 2 CR तक. अब ये होता कैसे, क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस है. एम्प्लॉय जो होते हैं वो किसी के नेटवर्क का पार्ट होते हैं, और अगर बिजनेस ओनर की बात करें तो वो खुद का नेटवर्क बना देते हैं. बिजनेस ओनर यहाँ पे पेशेंस लगते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर लगती है, पर यहाँ पे काम जो होता है वो परफेक्ट एंड क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बनता है. एम्प्लॉय की बात करें, अगर आप रिलायंस में जॉब कर रहे हो तो आप रिलायंस के नेटवर्क का पार्ट हो. पर अगर आप खुद का कोई भी नेटवर्क करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पे हम बिजनेस ओनर होते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट बनता है वो उसी लेवल का बनता है. तो सिंपल सा डिफरेंस होता है कि एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर किस तरह से अर्निंग करते हैं.
एम्प्लॉय किसी का नेटवर्क का पार्ट, बिजनेस ओनर खुद का नेटवर्क। सिंपल यही एक यहाँ पे डिफरेंस होता है। पर अगर बिजनेस की बात करें हम, जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कैसे चलते हैं, सबसे पहले तो आपको आइडिया आएगी कि मुझे बिजनेस करना है। अभी मेरे को आइडिया आएगा कि मुझे बिजनेस करना है, तो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है। अगर उस प्रोडक्ट को मुझे खुद मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हायर करने पड़ेंगे। जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का मुझे स्टॉक करके रखना पड़ेगा। ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे मुझे ऑफिस भी करना पड़ेगा, जो भी मेरी कंपनी होगी उसको ऑफिस करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्रिकेटर उन लोगों को इनवाइट करना होगा मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, वहां से मेरी मार्केटिंग होगी। फिर आगे जाके मैं नेटवर्क बनाऊंगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग होंगे उनके साथ मैं नेटवर्क बनाऊंगा कि उनके थ्रू मेरा प्रोडक्ट सेल हो। प्रोडक्ट सेल होगा तो उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट आएगा। पर वेट, ये सभी तब पॉसिबल होगा जब मेरे पास ये चीजें होगी। तो ये चीजें क्या है, वर्किंग कैपिटल। जब तक मेरे बिजनेस से मुझे अर्निंग नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक मैं मेरा बिजनेस चलाऊंगा कैसे। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल। सेकंड आता है कि क्वालिटी मैन पावर। अगर बिजनेस कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्वालिटी मैन पावर भी चाहिए। अब जो भी सेलिब्रिटीज को मैं बोलूंगा वो मुफ्त में आकर के, फ्री में आकर के तो मेरी एडवर्टाइज नहीं करोगे, तो उनके लिए मुझे लगेगा मार्केटिंग का बजट, करोड़ों रुपए वो भी लेंगे। सेकंड आता है कि टैक्सेस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है जो भी मेरा स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होगा, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। सारी बात होती है कि हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। अगर हम बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक हमें सबसे पहले गारंटर मांगेगा, फिर हमारी प्रॉपर्टी मांगेगा मॉर्गेज रखने के लिए, फिर उसके इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेकर के हमें वो लोन देंगे। तो इतनी जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, और उसके अलावा एक ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ये होता ही है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट की परमिशन ले रहे हैं तो टेबल के नीचे या इधर से उधर से सेटिंग करके ही परमिशन जल्दी मिलती है। उनके हिसाब से चलोगे तो फिर आपका बिजनेस अगर इस साल में स्टार्ट हो रहा होगा तो आगे 2-3 साल के बाद होगा, राइट। इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी बहुत ज्यादा, टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपके पास गारंटी नहीं होती कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे ये चीजें करते भी नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी भी नहीं है। चलो, पर एक एक बोल दे कि मुझे नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है, वो इन्वेस्टमेंट के साथ उन लोगों को हम बताते हैं कि स्टिल सम स्टेट में भी फिर से लॉकडाउन लगाया है, जो महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया। सो जो नॉन इसेंशियल आ रहे, शटर फिर से डाउन हो चुके, है ना। वहां पे उन्होंने क्या लिखा है, शटर के बाहर पे क्या लिखा है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करना तो हम देंगे। मतलब उनको बिजनेस देके कैसा बिजनेस करने की उनके ऊपर टाइम आया है, बहुत टफ टाइम है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 3 ही इंडस्ट्री ऐसे जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री होने वाली, सिर्फ 3 इंडस्ट्री। कौन सी? एजुकेशन। 2020 से पहले एजुकेशन कैसे चलता था? ऑफलाइन, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास। पर अब 2021 में वो शिफ्ट कैसे हुआ है? ऑनलाइन। बच्चे अपने कंफर्ट में लेकर के जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करके पढ़ रहे हैं। फिर अगर आप ज्वाइन करो, उस मीटिंग को ज्वाइन करो या ना करो, स्कूल वालों को तो फीस देनी है, ट्यूशन क्लास वालों को फीस देनी ही देनी है। अगर आप ज्वाइन करो या ना करो, उनका कोई लेना देना नहीं, वो तो पढ़ा रहे। सेकंड आता है मेडिकल इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा यहाँ पे तो अभी बहुत डॉक्टर फॉर्म में है। अगर आपको कोविड हुआ है तो आप अगर एडमिट हो तो आपका जो बिल आएगा 1 लाख से प्लस ही आने वाला है। सो मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत थर्ड आता है हेल्थ और वेलनेस। अभी कोविड का टाइम है, आप और आपकी फैमिली मास्क यूज करते हो, सैनिटाइजर यूज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप और आपकी फैमिली अपने हेल्थ की केयर कर रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए। वेलनेस, मेडिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये तीन इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से रिसेशन फ्री आप बिजनेस और बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। हमारा जो बिजनेस आता है, हम प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारा बिजनेस आता है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में, जो कि एक पूरी तरह से रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। तो हमारा बिजनेस क्या है? इस बिजनेस को 21st सेंचुरी का बिजनेस ये भी कहा गया है ना। 21st सेंचुरी का व्यवसाय, बिजनेस, ये भी उससे कहते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने डिजिटल क्यों डाला हुआ है? हम
मिल रहे क्या है, तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं बताना है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल संकेत, नेटवर्क मार्केटिंग। संकेत आपका आवाज बहुत कट हो रहा है, लेकिन डोंट स्टॉप नाउ, डोंट स्टॉप, कीप इट कंटिन्यूअस, बिकॉज क्या है आपका स्लाइड आ रहा है, तो मेनी पीपल कैन रीड व्हाट यू आर सेइंग, सो डोंट टू वरी, यू कीप योर सेमिनार ऑन, ओके डोंट स्टॉप द सेमिनार, बट आपका ओके आवाज बहुत कट हो रहा है। ओके ओके। या बट डू नॉट टू वरी, सो लेट्स नॉट स्टॉप इट, लेट्स कंटिन्यू, या थैंक्स। ओके, ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे आपका बिजनेस करने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड होता है कि बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल, आपके पास जो भी स्किल्स है, लीडरशिप की स्किल है, टीम मैनेजमेंट का स्किल है, सोशल मीडिया से अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो वो जो भी आपके स्किल्स है आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स। थर्ड आता है कि बिल्ड पैसिव इनकम, आप यहाँ से पैसिव इनकम कमा सकते हो। प्रोवाइड यू एक्सेलेंट नेटवर्क, हमने इसके पहले देखा कि एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर, एम्प्लॉय किसी के नेटवर्क का पार्ट होते हैं, बिजनेस ओनर खुद का नेटवर्क बनाते हैं, आप यहाँ पे अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो। फिफ्थ आता है पॉइंट की रिसेशन फ्री बिजनेस, इट्स अ टोटली रिसेशन फ्री बिजनेस। अब ये तो रिसेशन फ्री बिजनेस है और साथ में ये बिजनेस बहुत ईजी है, सिंपल बिजनेस है बट ईजी नहीं है। हर बिजनेस के कुछ सिस्टम होता है, कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें उनको फॉलो करके इस बिजनेस में आगे बढ़ना होता है। तो सिंपल बिजनेस है पर इजी नहीं है, पर जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं ये पॉइंट्स, इलीगल वर्सेस लीगल। अभी इलीगल वर्सेस लीगल क्या है? इलीगल में आते चेन सिस्टम, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, मेंबर बनाने पड़ रहे, इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर ठीक है, चलो हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं पर उसके सामने से हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलते, कोई सर्विसेज नहीं मिलते, तो ये जो सब आता है वो आता है इलीगल में। इंडियन गवर्नमेंट में 2016 को कुछ गाइडलाइन इशू किए, उस गाइडलाइन के इशू से गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को इलीगल कहा गया है। तो लीगल क्या है? लीगल आता है रेफर एंड अर्न, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, और यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन मिलता है आपको और आपकी पूरी टीम के टर्नओवर पे कमीशन मिलता है। एंड यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो, आपकी फैमिली यूज करते हो, सो जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम इलीगल की बात करें और लीगल की बात करें, सो सिंपल एक साइन लाइन जैसा डिफरेंस होता है। इलीगल में प्रोडक्ट्स नहीं होते, लीगल में प्रोडक्ट्स होते, बस डिफरेंस सिंपल होता है। इलीगल में प्रोडक्ट्स होते, इलीगल में प्रोडक्ट्स नहीं होते। अगर इलीगल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो आपको कमीशन मिलता है वो कमीशन मिलता है रिक्रूटमेंट के ऊपर, आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो उस पे आपको कमीशन मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ मनी सर्कुलेट होता है इलीगल में। लीगल की बात करें तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है आपके टर्नओवर के ऊपर, कितने लोगों को जोड़ रहे हो कोई मतलब नहीं, आप कितने का टर्नओवर जनरेट कर रहे हो उससे लेना देना होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है उसके बारे में एक्सपर्ट्स लोग क्या कहते हैं, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस के बारे में रतन टाटा, बिल गेट्स, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके पास ही जाओगे ना। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उनके पास तो नहीं जाओगे क्योंकि वो क्रिकेटर है, वो अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, ये लोग अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है। तो व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से इस बिजनेस के बारे में, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। बिल गेट्स, अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, उनको एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपको हम चांस देंगे कि आपको अपना करियर जीरो से स्टार्ट करना है तो आप क्या चूज करोगे? उन्होंने मार्केटिंग का चूज करोगा। बिल क्लिंटन, 90s में यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़ा क्रैश हो गया था, किस तरह का क्रैश था, डाउन हो चुकी थी अमेरिका की, यूएसए की 90s में, तब वहां पे प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। उस वक्त पे यूएसए के जो भी रेसिडेंट थे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में इन्वॉल्व करके यूएसए की इकोनॉमी का ग्रोथ लिया। और तब बिल क्लिंटन कहते हैं कि योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो थैंकफुल है इस इंडस्ट्री को लेकर के। I think, guys, he's having a Wi-Fi problem, and but don't worry, we'll still encourage him because at this age he's doing a fantastic job and mind blowing. के ये age में एक जो आदमी इतना तारीफ कर सकता, yeah, I think you're come back. I'll you already 1 minute. Let me add you. No, you're already a co-host. You can speak. Yeah, thanks.
don't stop. Keep on continuously speaking because we need to get the show on. Wi-Fi is not, by the way, Wi-Fi forever का नहीं है, कोई दूसरी provider है, so don't blame the Wi-Fi on forever. Thank you. So रॉबर्ट टी क्या सा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंडेड करते हैं क्योंकि उनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं कि जिनको वो बेनिफिट्स लेने होंगे। तो आप बोलोगे ये तो सब बाहर के लोग हो गए, यूएसए के हो गए जो नेटवर्क मार्केटिंग पे बोल रहे हैं। इंडिया के लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इंडिया के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। डोनाल्ड ट्रम्प, direct selling is actually one of the oldest and most respected business model in the world as the stood test of the time. इंडियंस लोग हो गए, विवेक बिंद्रा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी अपने एक वीडियो में कहा है कि अगर मेरी कोई संतान होगी तो मैं उन्हें भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व करूंगा क्योंकि यहाँ से आपकी जो ग्रोथ होगी वो किसी और इंडस्ट्री से हो ही नहीं सकती। अब इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चला है कि यहाँ पे जो होता है, इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। ये भारती कॉलेज कॉमर्स का बुक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहे यंगस्टर्स लोगों को। अगर आप लोगों को ये झूठ लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये मैंने पीडीएफ बनाई है, जो ये स्लाइड बनाइए, एडिट करके बनाइए, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी कि इफ यू वांट आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑफ दिस बुक आल्सो। सो कोई भी झूठ नहीं है, ये सच है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हमें पढ़ाया जा रहा है, तो किस कंपनी के साथ करें फिर नेटवर्क मार्केटिंग? Among the many network marketing companies that target a health and conscious market worldwide with exclusive product. पूरे हेल्थ और कॉन्शियस का जो भी हेल्थ और वेलनेस की बात होती है तो फॉरएवर सबसे पहले आता है, हम सभी को पता है। सो अभी गवर्नमेंट हमें ये भी बता रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। सेकंड, ये भी बता रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस कंपनी के साथ करना है। सो अभी ये क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है टॉप हेल्थ और वेलनेस ब्रांड इन वर्ल्ड वाइड। जब भी हेल्थ और वेलनेस की बात आती है फॉरएवर सबसे पहला नाम आता है। 1978 में ये कंपनी फाउंड हुआ था, 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है। कंपनी वाज एक्टिव इन 175 प्लस कंट्रीज एज ऑफ 2020। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे है तो आप बिजनेस अपना 175 प्लस कंट्रीज में भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है कि 2800 प्लस ओन ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑफिसेस है, जितनी भी प्रॉपर्टी हो खुद की, कोई भी रेंट ली हुई प्रॉपर्टी नहीं है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 28,000 करोड़ से भी हर साल में एक ऐसी लिस्ट अपडेट करता है कि जो उस साल में पर्टिकुलर ईयर में टॉप 500 कंपनीज ने सबसे ज्यादा टर्नओवर जनरेट किया है, उस कंपनी का लिस्ट फॉर्च्यून 500 निकलता है। उसमें फॉरएवर ने अपने आप को 4 बार दर्ज किया। 10 बिलियन यूएसडी एसेट्स, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी के पास संपत्ति है। एनएफएल इज अ टोटली कैश रिच कंपनी। 1978 से लेकर के अब तक 43 इयर्स में किसी भी बैंक का लोन नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, शेयर होल्डर किसी, आप सभी लोगों को पता ही है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है, क्यों ये कंपनी इतनी ऊपर है? फॉरएवर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा इन वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट कंपनी के पास खुद की एलोफील्ड है कि जहां पे कंपनी 50 मिलियन से भी ज्यादा के प्लांट्स ग्रो करती है एंड एलोवेरा जनरेट होता है। एलोवेरा के बेनिफिट हम सभी लोगों को पता है, हिस्ट्री में भी उसके बेनिफिट्स बहुत है। हैंड हार्वेस्टेड है, फील्डेड बाय हैंड होता है एंड सिंपल कंसेप्ट पे काम होता है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। सिंपल कंसेप्ट, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। सो जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, सो प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है? वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, होम केयर, एलोवेरा ड्रिंक्स, डेली यूजेस, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर में यूज कर सकते हो। सो बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में डिफरेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ऊपर आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, नीचे आते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, और तब जाकर के आपका प्रोडक्ट जाता है कस्टमर लोगों के पास। मान लीजिए आप ट्रेडिशनली तरीके से 100 रुपीज का सेल करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज है, आपको वहां से जो 80 रुपीज बचते हैं वो 80 रुपीज आपको नहीं देंगे, कंपनी 80 रुपीज इन सब लोगों को देगी जिनके थ्रू उनका नेटवर्क क्रिएट होता है। और फॉरएवर के बिजनेस में डिफरेंस बात क्या है पता है? फॉरएवर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ऊपर,
यहाँ से प्रोडक्ट सीधा आपके पास आते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ बिजनेस ओनर, और यहाँ से प्रोडक्ट जाते हैं कस्टमर के पास। अगर आप फॉरएवर में लगभग 80 रुपीज या 100 रुपीज का सेल करते हो और 20 रुपीज फॉरएवर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखता है, तो यहाँ पे जो आपको मिलता है 80 रुपीज किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है हर मंथ के 15। सो ये बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करते उसके पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है सीसी। सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी क्या होता है? हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने किसको पॉइंट रखे हुए हैं। पॉइंट्स क्यों रखे हुए हैं? तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी अलग है। इंडिया की रुपीज है, यूएसए के डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड है, बहुत अलग अलग करेंसी है। इसके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए कंपनी ने सीसी रखा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 सीसी की प्राइस है 15,000 रुपीज। इंडिया की बात करें तो 1 सीसी इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। सो फॉरएवर का जो इनकम बोनस स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है 2 सीसी, आपको बिजनेस करना होता है, रफली 30,000 का बिजनेस आपको जनरेट करना होता है, और साथ ही साथ करने के बाद कंपनी आपको पर्सनल बोनस 5% पर्सनल बोनस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप अपने पूरे टीम के साथ 25 सीसी का बिजनेस करते हो, आप कंपनी में आपको आती है 3%। जैसे अब अपने पूरे टीम के साथ मिलकर के 75 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हो, तो आप कंपनी में बनते हो असिस्टेंट मैनेजर। 8% आपको पिछली बार पर्सनल बोनस आ रहा था, तो आपको यहाँ पे हो जाता है वो 13%। पिछले बार सुपरवाइजर कुछ नहीं मिल रहा था, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको 8% होते हैं। और ये जो मैनेजर लेवल, इसे ड्रीम लेवल कहते हैं। अब इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरे टीम के साथ 120 सीसी का बिजनेस करना होता है। 13% पिछली बार पर्सनल बोनस था, वो बढ़ के होने वाला है 18%। असिस्टेंट मैनेजर से 5%, सुपरवाइजर से 5% आ रहा था, वहां से 10%, 8% का भी बढ़ के होने वाला है 13%। और कमाल की बात है कि रिवर्जन नहीं होता यहाँ पे, रिवर्जन ही नहीं होता। अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। नेक्स्ट मंथ में अगर उतने नहीं सेल किए तो फिर से सुपरवाइजर बनना है, फिर से सेल नहीं किए फिर से असिस्टेंट सुपरवाइजर। कंपनी की बात करें तो आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो। आने वाले 2 मंथ तक कुछ भी इशू हो आपके साथ, आप बिजनेस नहीं कर सके, 3rd मंथ में आप बिजनेस में फिर से आ गए, आपको असिस्टेंट मैनेजर से ही शुरू करना है। आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता है। आप जिस लेवल पे स्टॉप हुए उसी लेवल से आप फिर से बिजनेस कर सकते हो। और नॉमिनी सिस्टम भी है यहाँ पे। नॉमिनी सिस्टम क्या होता है? हम हमारे पापा की डिग्री के ऊपर कभी भी जॉब नहीं ढूंढ सकते, कभी भी नहीं। अगर आपके फैमिली में किसी के पास आईआईटी की डिग्री है और वो आपके पापा है, आप उनके नॉमिनी हो, क्या उनके डिग्री पर आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलती। पर अगर यहाँ पे आपका बिजनेस है और आप कंपनी में मैनेजर बने हुए, आपके पास जितनी भी टीम है, जितना भी इनकम है, जितना भी वॉल्यूम आप जनरेट करते हो, सारे का सारा अब अपने नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हो। और उस नॉमिनी जीरो से नहीं तो जिस लेवल से आपने छोड़ा है उसी लेवल से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे इनकम पोटेंशियल क्या होता है फॉरएवर का? वो 4 लेवल होते हैं यहाँ पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, उसके बाद भी बहुत सारे लेवल है। असिस्टेंट सुपरवाइजर में आप सभी को पता है इनकम जो होती है लगभग 25,000 रुपीज तक होती है, फिर यहाँ पे 35,000 बढ़ जाती है, फिर 60,000। और मैनेजर जो ये ड्रीम लेवल कहा जाता है, यहाँ पे आपकी जो लेवल बढ़ती है वो 1 लाख रुपीज तक हो जाती है। और फॉरएवर आपको 10 टाइप्स के इनकम देता है, सभी को ट्रेनिंग में पता चल ही जाएंगे। सो फॉरएवर टू ड्राइव अर्न इंसेंटिव, इस इंसेंटिव से आप अपनी कार बाय कर सकते हो, हाउस बाय कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू विश फॉर। आपको जिस भी चीज को इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन के लिए सेविंग करनी है, और किस चीज के लिए सेविंग करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि पैसे ही इतने जबरदस्त आते हैं। 3 मंथ में आपको करना होता है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। यू गेट पर मंथ रुपीज। पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है। एक ही मंथ मिले नहीं, आने वाले 36 मंथ के लिए, 3 साल के लिए आपको कंपनी एक्स्ट्रा मनी देती है। लेवल 1 होती है, लेवल 1 में आपको कंसेक्यूटिवली 50 सीसी, 100, 150 सीसी पूरे टीम के साथ करना होता है। करने के बाद कंपनी आपको 26,000 रुपीज पर मंथ देती है। एंड फॉर नेक्स्ट 36 मंथ यानी कि 3 साल तक कंपनी आपको 9,36,000 लेवल 2 की बात करते हैं, लेवल 2 में आप फॉर नेक्स्ट 36 मंथ
18,72,000 रुपीज कंपनी आपको पे करती है फॉरएवर चेयरमैन बोनस, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया था। और में से 3% फिर से बांट देता है एज अ चेयरमैन बोनस। साइमन सर दिवाली बोनस कहते हैं। अभी हम अगर जॉब की बात को बोनस कितना मिलेगा, उससे ज्यादा किसी भी कंपनी आपको बोनस नहीं देती, दिवाली बोनस। इन 2012 साइमन सर ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था और तब का यूएसए का डॉलर की रेट था 52.82, मतलब लगभग 98 लाख से भी ज्यादा का चेक उनको मिला था एज अ दिवाली बोनस। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार क्वालिफाई कर सकते हो, चाहो इतनी बार क्वालिफाई कर सकते हो। 2014 में फिर से क्वालिफाई किया था 88 लाख रुपीस, 2016 में 61 लाख रुपीस, 2011 में 42 लाख रुपीस, एंड इट्स नॉट एंड ईयर। ये तो आप कहोगे ये तो पहले का है। 2021 में 2020 में कोविड की वजह से कंपनी की क्या हालत है, क्या कंपनी भी बाकी कंपनी की तरह लॉस में है, बोनसेस नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है, मंथली पेमेंट नहीं आ रहा है, मंथली पे आउट नहीं आ रहा है? नहीं, क्या हो रहा है फिर? आप सभी को पता है, जतिन अरोड़ा 5187 लाख, 5193 लाख, अमित बिष्ट, यादविंदर, ये जो सब लोग है ये यंगस्टर्स है, 21 ईयर्स ओल्ड के हैं। ये इंडिया के टॉप 2 चेक्स, तरंग सर, कृष्णा सर, 66 लाख रुपीस तक उनके चेक्स गए, है ना, क्योंकि ये 63 लाख रुपीस तो चेयरमैन बोनस है। प्लस इंडिया जो ग्लोबल रैली हो रही थी वो सिडनी में होने वाली थी, तो वहां के जो चेक्स थे, मतलब वहां पे जाने के लिए जो भी कंपनी मनी देने वाली थी, वो लगभग आई थिंक 3.5 लाख रुपीस कंपनी ने फिर से पेमेंट कर दिया है कि वो सिडनी में कोविड की वजह से नहीं हो पाए तो दिल्ली में रखा, तो उसके भी पैसे दिए। और ये जो अमाउंट बांटा गया है वो 2021 में दिया, मतलब कोविड की समय में कंपनी इस तरह से पैसे दे रही है। मतलब कोविड का और फॉरएवर का कोई लेना देना ही नहीं है, कोविड ने फॉरएवर को नहीं पकड़ के रखा है। जैसे और इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि कंपनीज लॉसेस में जा रही है कोविड की वजह से, यहाँ पे कोविड का कोई असर ही नहीं है। तो बात करते हैं कि हमारे जो मेंटोर है, फ्रीडम ग्रुप के जो मेंटोर है, मेरे जो मेंटोर है, उनके बारे में, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था फॉरएवर में 2000 में। लगभग 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें फॉरएवर के साथ बिजनेस करने का। ही बिकम द फर्स्ट मैनेजर एंड फर्स्ट 6 फिगर इन इंडिया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद में सबसे पहले कौन गया था चांद पर, तो सभी लोग बोलेंगे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। सेकंड कौन गया था, थर्ड कौन गया था, फोर्थ कौन गया था, गूगल करना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है, पर फर्स्ट कौन गए थे? मैनेजर लेवल पे गए, जिस भी लेवल को he has qualified earn incentive level 1, level 2, level 3, उन्होंने लगभग 7 बार से भी ज्यादा बार उन्हें क्वालिफाई किया है। दिवाली बोनस उन्होंने 5 बार क्वालिफाई किया है। he has qualified 100+ इंटरनेशनल ट्रिप फ्रॉम फॉरएवर। एंड मिस्टर साइमन जोसेफ डेविडसन, उन सभी का नाम है, आप सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो अगर आप फ्रीडम ग्रुप के साथ, अगर हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है उसके बारे में आपको रफली क्विक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे हम सिखाते हैं मेनली कि सोशल मीडिया को किस तरह से अपने बिजनेस को यूज करने, Sanket, there is, I think, a lot of disturbance. I think, Sanket, you can stop the presentation here if it's nearly over, so that I can. Sanket, I think the sound is cutting, and I think your seminar was excellent, mind blowing. And for our FLP team, one of our core members, Mr. Rajiv Mehta, is also there and he's attending your seminar. What I like about him also, he's very focused and he attends most of the people's seminar. So what I'll do is I'll like to bring Rajiv just to Sanket, आपका आवाज कट हो रहा है, but आपका seminar जबरदस्त है guys. Just if you can, you loved his training, please pass comments there about him. So I'd like to invite Rajiv, only if you can just speak on how
well, Sanket spoke because he's one of our top guys from Forever. So Rajiv, you can come in. Okay, your sound is off. Okay, I'll make you the co-host. Yeah. Yeah, Rajiv. Sir, fantastic. This guy is amazing. Sanket, you are really powerful. I mean, बहुत बढ़िया presentation. I mean, first 2-3 months of joining, मैं तो यार 6 महीने तक presentation करने को हिम्मत नहीं हो रही थी. Fantastic presentation. And Rajiv, the good news is this full PowerPoint he's done. Thank you, sir. All the things, all the photos, videos I had given him, but he himself, that is very impressive. Okay, he himself worked on it. He himself did it, and he was doing a research from last year. When that time he was not 18. 18 abhi ban gaya. So that is again a fantastic, guys. Guys, this is what he's doing. I can just, सोच सकते हैं आगे चल के क्या, what future holds for him. I mean, that's wonderful. Sanket, now once this COVID is over, I wish it gets over fast. Thank you. You can come and take photos with all these top leaders, Praful, Sachin, and then Zarur. Praful. Then we can have Bharat Shah, Bharat and Beena. They're a husband-wife pair which do fantastic business. So, Yeah, पता है मुझे. You know, आपने मेरा फोटो दिखाया था ना उसमें मेंटोर में. आपने मेरा फोटो दिखाया ना मेंटोर में. अभी वो पावरपॉइंट में मेरा फोटो दिखाया था ना. हाँ, but that's a very old photograph. I look younger now. Anyway, thanks a lot and fantastic, guys. Meda is also one of our top trainers with us. Very good on products. Great presentation, very impressive. Most of them have. Jayesh again is a fantastic guy with our team. He's also very good. Then Dinesh, you will be the next Rofkip. There's a comment. You will be the next. Rofkip is the top earner in the world. जिसको 10 करोड़ 15 11 करोड़ 12 करोड़ का चेक मिलता है. तो मेरा एक ही रॉफकिप बन जाएगा तो मेरे को याद रखना, मेरे को भूलना मत. Then Khalid Sheikh again is fantastic. He said power pack presentation, all the best, guys. So this has been amazing and fantastic, guys. If not tomorrow, day after, we're going to have another training, and the heading of the training, please understand what I'm saying. The heading of the training, Sanket was superb. So first of all, thanks a lot, Sanket. I would like to thank you a lot. You did an amazing job. But the training that we are going to have, if not tomorrow, day after, which I'll post to everybody, the heading of the training का जो heading है, वो है a kid who is 20 years old. Sanket is 18, not 20. A kid who's 20 years old makes 6.5 lakhs per month with Forever. और ये proof के साथ, no बोल बच्चन, no. तो कुरकुर भी allowed है, क्योंकि जब तक कुरकुर नहीं हम लोगों को मजा नहीं आती. We get younger with this kurkur. So thanks a lot, Sanket. We can't see your photo now, but we can we see you again? आपका बहुत तारीफ हो रहा है. Thanks Meda, thanks. Do very good. Thanks. I would say thanks to Sanket for the amazing training. We had over 100 people, which was amazing. So we don't take much time. Actually, we have overshot the time. We were supposed to do this for 1 hour, but थोड़ा उनका interview था, and I liked his excitement. So thank you everybody, guys. Wish you all the best, and let's rock the show. And in this COVID time is not a challenge for us. We'll break wonders and we can break all records. So we'll do wonders. Thank you again, all guys. Love you all. Bye.